गुरुतम. Okay. Please mute yourself, all of you. Just give me a second. I will mute him. Okay, fine. Okay. So we have to learn based on the terms. So first of all, I would like to tell you what is term. So anybody knows about that? What is term? Anybody knows? Amishi? Sir. Okay, I will tell you about it. We are going to learn the terms. आप सभी लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे मैथमेटिक्स में लिखे हुए मिलते हैं 7x plus 5y plus 10. Have you seen like this? Yes, sir. Okay. So when you have seen like this, so what are these? These are what? These are the terms. These are what? Terms. So we will call it this one as the first term. What we will call it? First term. Okay. We will call this one as second term, and we will call it this one as the third term. Okay. Amishi, is this clear? Yes, sir. Okay. सोनल, आपको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ओके, फाइन, ठीक है, हम आगे चलते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कोई भी एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? टर्म होता है, राइट? सो फॉर राइटिंग एनी एक्सप्रेशन, give me a second, I will mute him. Okay, for any expression we need to add and subtract. We need to add and subtract the terms. So here all of you can see that I have taken how many terms? I have taken the 3 terms, right? So I will just show you, give me a moment here. Okay, give me a second. Okay, so here you can see I'm just moving the, okay, I'm just giving you the details. Okay, yeah. So you can see here, I'm going to write it down. Terms. So basically the terms can be a constant, terms can be a constant, terms can be a product of variable, the terms can be product of variables. Is that clear with you? So I'm taking the example. आप सभी को क्लियर है क्या लिखा मैंने? टर्म्स किसको कहते हैं, राइट? अमिशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो टर्म्स किसको कहते हैं? सो टर्म्स में आता है कांस्टेंट, लाइक टेक एग्जांपल 10, 15, 20, 30 or anything. If I say that, that is also known as term. Terms हम किसको कहते हैं कि product of variables. Suppose that I have taken x times y. These are the two variables I have taken. These are the two variables I have taken. So what I will do, I will just multiply here. What I will do, I will just multiply here to write down x, y. So this is what? This is the product of variables, right? And sorry, and the product of variables and constant. Here I need to write down third type, variables and constant. So in this, if you see that, we can write 5 times x times y. So it becomes how much? This becomes
5xy. So this is also a term. Is that clear with you all? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So total we have Rohit, आपको clear है ये? सर हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टर्म्स को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. टर्म्स को डिफाइन करने के लिए एक होता है कांस्टेंट. तो कोई कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो वो भी टर्म कहलाएगा. दूसरा, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स. कहने का मतलब कि एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल हैं. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लिया तो हमें क्या मिला? हमें एक्स वाई मिला, राइट? इसको भी हम एक टर्म कहेंगे. तीसरा यह है कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो यहां देखिए, मैंने एक कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया, दूसरा वेरिएबल लिया, तो इन सब का प्रोडक्ट मुझे मिला 5xy. तो इसको भी हम टर्म कहेंगे, राइट? यस सर. तो टर्म्स के लिए बेसिकली क्या है कि टर्म्स को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. टर्म्स कैन बी अ कांस्टेंट, terms can be a product of variable, and terms can be the product of variables and constant. Is this clear with all of you? All three Yes. points? Please mute yourself. Okay, is this clear? Amishi, is this clear? Yes, sir. रोहित, आपको क्लियर हुआ? रोहित, ओके, ठीक है, वो बता देंगे बाद में, नो इश्यू. ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तो यहां पर मैंने बताया कि टर्म्स क्या होता है, ये मैंने क्लियर कर दिया, राइट? तो आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. कैन यू सी द स्क्रीन? प्लीज नोट डाउन व्हाट इज टर्म. सो वी कैन डिफाइन द टर्म एज कांस्टेंट. We can also define the terms as product of variables and product of variables and constant. This is the definition for the term. All three things related to the terms. Please make a note in your notebook fast. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, बट आप लिखोगे तो जल्दी याद होगा. Is that clear? Yes sir. Yes. So please note it down. Giving you 2 minutes for writing. जब हो जाए तो मुझे बता दो ना आप लोग. Oh yes sir. Amishi done? Yes, sir. ओके. और सोनल, ये लोग कौन ज्वाइन किए हैं? रोहित, एक और कौन है? एक और सर नीतीश होगा. ओके, ठीक है, कोई नहीं. नीतीश और रोहित डन हो गया? ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल प्रोसीड. जस्ट गिव मी सेकेंड. तो हमने सीखा व्हाट आर द टर्म्स, राइट? ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ, व्हाइट स्क्रीन. Yes sir. ठीक है, ओके, फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. गिव मी अ मोमेंट. ओके, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारे पास. व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन? What is degree of expression? That is very, very important, which we need to learn here. Okay. So we can say here the highest power of a term in an expression is called degree of, you can say polynomial also, you can say expression also, that doesn't matter. Is that fine?
Amishi, is that fine? Yes, sir. Okay, fine. So I'm writing down here one example. I have taken here 3x square plus 5x plus 10. अब मैं एक चीज यहां समझाता हूं. मैंने टोटल कितने टर्म्स लिए हैं सोनल? हाउ मेनी टर्म्स आई हैव टेकन हियर? 3 terms. 3 टर्म्स. तो देखिए यहां पे ये पहला टर्म जो आप देख रहे हो ये किसका प्रोडक्ट है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट And and variables. variables, right? Yes, So sir. this is my first term. This is the second term. The second term is what? Second term is the product of, Amishi, is the product of Product of constant and variable, right? And the last term is just a Sir. constant, correct? So all these are called terms. All these are what? All these are called terms, right? अब हमको देखना है डिग्री. तो डिग्री कैसे देखेंगे? तो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट में कहा है हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन एन एक्सप्रेशन. तो सबका सारे टर्म्स का पावर हम निकाल लेते हैं. तो पहले टर्म का पावर कितना हो जाएगा? देखिए x के ऊपर 2 लिखा है. हम देखेंगे कहां पर देखेंगे? हम देखेंगे वेरिएबल के ऊपर. रोहित, नीतीश, क्लियर हुआ? कहां देखेंगे हम? वेरिएबल के ऊपर, राइट? तो यहां पे 2 आया. अब इसके ऊपर अगर हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब ये है 1, तो इसका क्या हो जाएगा? यहां पे पावर, यहां पावर हो गया 1. यहां पर कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या अमीशी? कैन यू सी एनी? Yes. No. So what will be the power here? What will be the power of the variable here? 0. 0. So now in this expression, what is the highest power here? What is the highest? 2 is the highest, right? So we can Yes. write it down here. The degree of given expression, the degree of given expression is 2. Is that clear? Sonal, clear हुआ आपको? Yes, sir. सोनल, क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, फाइन. ठीक है. रोहित, नीतीश? Okay, I think they are not responding right now. No problem. Okay, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैं एक दूसरा एक्सप्रेशन लेने जा रहा हूं. आप सभी लोग बताएंगे उसमें. I have taken here 4x square y plus 3x y power 4 plus 8x power 3 plus 10x square y. Can you tell me the degree of this expression? Amishi, Sonal, anyone? 4. Okay. So Sonal, you told 4. Amishi, what's your answer? So 4. How it will be 4? I told you, wait, I told you earlier also, if we have 2 variables, so power will be added. What will happen? The power will be added. So here the power is 2. So, and what is the here power? Here is power 1. I will show you here. Here is the power 1. So for this term, the power is going to be 3. What will happen to this term, Amishi? So it will become 5. It will become 5. 5. Here it will be 3. Here it will be again 3. So I am looking that this is the highest power of this expression. So this is the highest power of the expression. So we can say that the degree of expression, what we can say? We can say that the degree of expression is 5. All of you clear? 5. Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लीज मेक अ नोट. आप इसको नोट कर लो.
ये नोट हो जाए तो मुझे बताना, मैं पेज चेंज करूंगा। एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर लेना। व्हाट इज डिग्री? तो हमने दो चीज सीखा है अभी, व्हाट इज टर्म एंड व्हाट इज डिग्री। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। डन? Yes, sir. Yes. ओके, तो आप लोगों ने ये वाला पेज नोट कर लिया है, ठीक है। और ये वाला पेज नोट हो गया पूरा एक्सप्रेशन के साथ। Yes. और ये वाला एग्जाम्पल, No. तो ये वाला एग्जाम्पल जल्दी से नोट कर लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल। ओके, इज इट डन? Yes, sir. Amishi done? Yes, sir. Okay, Rohit, Nitish done? Okay, okay, fine. Let's move. तो हमने आपको बताया था कि हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को बताया कि हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। एक है हमारा बेस्ड ऑन टर्म्स, ऑलरेडी मैं बोल चुका था ये चीज, मैं दोबारा से लिख देता हूं। और दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, सो मैं वन बाय वन मैं इसको बताने जा रहा हूं। सो थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे यहां पे। सो बेस्ड ऑन टर्म्स में हमारा सबसे पहला आता है मोनोमियल, राइट। सो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स, तो अमीशी इसका नाम ही मोनोमियल है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें? So, 1। क्या हो जाएगा? 1। one. उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल, तो इसमें इसका नाम ही कहता है बाय, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, सो इसमें कितने हो जाएंगे? ट्राई मीन्स 3। और उसके बाद हमारा आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिनके पास मोर देन 3 टर्म्स होता है। Four. ओके, अब मैं सबका एग्जाम्पल बता देता हूं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पे लिख दूं 5x, सो इसमें कितने टर्म्स हैं? ओनली वन टर्म, सो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन विल बी नोन एज monomial, right? If I Yes. say here, if I say here binomial, so you can see, you can take this example 5x plus 7y. So how many terms we can see here? We can see the two terms here, right? Another example for trinomial I'm writing. So for the trinomial, you can see I'm writing down here 5x plus 7y plus z. So total 3 terms we have. And if we have more than 3 terms, like I have already written, so these are more than 3 terms, so these are known as polynomial. सोनल अमिशी क्लियर है दोनों चीजें? Yes, sir. Three. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है। सो अभी देखिए, बेस्ड ऑन डिग्री, what we have to learn? Based on degree. So I'm just going to write it down here. Okay, give me a moment. So first of all, we have
linear. What we have? Linear expression. Linear expression में कितना डिग्री आएगा? Degree will be 1, right? Okay. Yes. Example. I will just write it down here. Degrees I will write down here, and examples I will give you here. So you can see I'm just a second. Yeah. Okay. So for example, I'm writing down the examples in this box. So example, if I write down here 5x plus 7y plus 10, what is the degree here? Degree is 1. That's why we will call it as linear expression. Second one we have quadratic. So in the quadratic, what will be the degree for the quadratic, Amishi? Sir, 2. 2, right, good. So you can see here I'm writing down the example x square minus 5x plus 6. Amishi, how many terms I have taken for this example? For this Sir, 3. So it's also known as trinomial, right? But Yes, it sir. has a, based on the degree we called it as quadratic. Sonal, clear हुआ आपको ये चीज? जी सर. Okay, the third one we have to learn cubic expression. In the cubic expression we have degree 3. So yeah, I'm just going to write it down here. X cube minus 2x square plus x plus 8. So you can see the degree of this expression is 3. So that is the reason we will call it as cubic expression. And the next one we have biquadratic. We have biquadratic. So biquadratic में degree हो जाता है 4. Okay. So we can take the example x power 4 minus 81. So Amishi, this expression का degree कितना होगा? What is the degree for this expression? 4. 4. Because x power 4 है तो इसका express degree क्या हो जाएगा? 4. So that's why we called it as biquadratic. Fine. Yes. इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो भी आएगा उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल. What we will call polynomial. Okay, पॉलिनोमियल का मतलब हो गया more than 4. That means अगर डिग्री जो है सॉरी यहां मैंने 5 लिख दिया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहां मुझे मोर देन 4 लिखना है. More than 4. I will take the example a power 6 minus 32. If I write it down like this, or I will give you another example, a power 100 minus 4, like this. Any example we can consider here. Okay, so that if we are getting the degree more than 4, so that will be known as polynomial. Is that clear, all of you? Yes sir. Okay, fine. Please आप इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से. You have 2 minutes. ये सारी चीजें बेसिक हैं. These are the basic which you should know about it. Done, sir. Done. Sonal done. Minutes, sir. Okay, do it fast. Okay. हो गया. Okay. Yes. किसी को बोलना है कुछ? रोहित, नीतीश? No sir. ओके, ठीक है, फाइन. ओके, म्यूट कर लीजिए. ओके,
सॉरी। ओके, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। यहां तक हमने देख लिया सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब देखना है, हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है टॉपिक? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप सभी लोग अपने नोटबुक में टाइप कर लीजिए, वी हैव टू लर्न अबाउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। Give me a moment. Okay. I am going to. Okay. Amishi, can you read on the board? Can you see? Yes, Please read a, it. a real number is called a zero of the polynomial px if p Alpha is zero. इस सिंबल को बोलते हैं अल्फा। नहीं पता, नोट कर लीजिए। इसको अल्फा बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। ओके, या सर डेल्टा बता दीजिए। डेल्टा इज लाइक दिस इज नोन एज डेल्टा। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए कि किसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया? ओके, अमिशी नोट कर लिया आपने? yes sir. ओके, सो लेट्स सी। मैं रब कर देता हूं इसको। सो वी नीड टू लर्न व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब मैं इसका डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक चीज दिखाता हूं। कैन यू, ऑल ऑफ यू कैन सी द एक्सप्रेशन और इक्वेशन? कैन यू सी दैट? Yes sir. ओके, अब देखिए इसमें इधर बोला है P3। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं वो समझा देता हूं कि होता क्या है। Px P3 क्या है, इसका मतलब है क्या। तो इन्होंने एक एक्सप्रेशन लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, राइट। इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो इन्होंने x के टर्म में लिखा है, इसीलिए हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, p ऑफ, इसको बोलते हैं p ऑफ t, पॉलिनोमियल ऑफ t। इसका मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उस एक्सप्रेशन को t के टर्म्स में लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है? t के टर्म्स में। कैन यू सी दैट? इसका मतलब ये हो गया। अब जीरो का क्या मतलब है ये जानना है हमको कि व्हाट डज द जीरो मीन। सो आप देखिए यहां पर इन्होंने बोला क्या, p ऑफ 3। तो p ऑफ 3 मतलब क्या कि x की वैल्यू को आप 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम इस इक्वेशन में 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो वी आर गोइंग टू सी दैट 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 minus 3. So it becomes how much? 9 minus 6 minus 3 and it gives me 0. तो ध्यान रहे ये 0 क्यों हुआ? अमीशी, can you tell me why it happens 0? So, अगर हम because- यहाँ, हाँ बोलिए बोलिए। so because they got subtracted, like नहीं, them सब्ट्रैक्टेड नहीं, equal. हमने इस एक्सप्रेशन में 3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है तो इस कारण 0 आ गया, राइट। हम एक काम करते हैं, हम 2 की वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। तो हमने 2 की वैल्यू पुटअप किया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 3। सो इट गिव्स मी 4 माइनस 3 एंड इट गिव्स मी माइनस 3। कैन यू सी दैट? हमने जब 2 की वैल्यू को यहां पुटअप किया तो माइनस 3 आता है, लेकिन जब 3 पुटअप किया तो यहां 0 आ गया। मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट करेंगे 3 की वैल्यू, 3 पुट करेंगे x की जगह पे, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो 0 होगा क्या अमीशी? No sir. नहीं। तो जो वैल्यू x की पुट करने के बाद एक्सप्रेशन को 0 कर देता है, जो वैल्यू, द वैल्यू which makes the expression 0, that value is called zero of the polynomial. तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं, मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं यहां पे कि
3 is or sorry, 3 is 0 of the polynomial. 3 is what? 0 of polynomial. और सिंपल सी बात है, इसको अगर दूसरे तरीके से समझना है तो हम लोगों ने बहुत सारा सॉल्व किया है. फाइंड द सॉल्यूशन, राइट? तो सिंपल सी बात, x की वैल्यू निकालना होता है. फाइंड द सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू निकालना. तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वो वैल्यू जिसके कारण ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं 0 ऑफ द एक्सप्रेशन. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? अमीशी, Yes, sir. सोनल, क्लियर? Yes, sir. तो आप एक काम करो, आप लोग लिखो. मैं आप ये पहले लिख लो, ये वाला नीचे लिख लो. नीचे ये जो मैंने पेन से लिखा है, पहले वो लिख लो आप लोग. Done. डन? ओके. अमीशी, डन? Yes, sir. ओके. अब आप लिखो स्टेटमेंट जो मैं बोलूंगा. Zeros of polynomial. I'm going to rub it these parts. Okay. The value of variable like x or y, the value of variable when we substitute in expression, so expression becomes 0, expression becomes equal to 0, then that value of variable is called 0 of expression. Okay, 0 बोल लीजिए या रूट बोल सकते हैं, is same. Please make a note of it, this part. Okay. Amishi, done? Yes, sir. मतलब कहने का मतलब है कि वह वैल्यू, that value which we will substitute in the expression and expression will become 0, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे zeros of the expression. Is that clear? Yes. Okay. अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पास, याद रखिएगा, आपने ने नोट कर लिया है इसको? आई एम रबिंग दिस पार्ट. ओके ओके. ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री जितना रहेगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस भी रहेगा. उतना ही नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ जीरोस भी रहेगा. इज दैट क्लियर? इसका कहने का मतलब यह है कि लीनियर में कितने जीरोस मिलेंगे? 1. लीनियर में हमें 1 0 मिलेगा. क्वाड्रेटिक में कितने जीरो मिलेंगे अमीशी? 2. एंड क्यूबिक में? 3. क्यूबिक में 3. एंड बाई क्वाड्रेटिक में? 4. बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस. अमीशी, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है या फिर आपको मींस ऊपर से चला गया? ये बताइए पहले. क्लियर हो रहा है. मींस आपको समझ में सब कुछ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? या अगर कहीं कुछ डाउट हो, आप उसी वक्त मुझे रोक कर बोल सकते हैं, नहीं मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, मुझे आप दोबारा से बताओ. ठीक है, आई कैन डू दैट. आई कैन. सोनल, सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पर एक चीज 10 बार बताने को, 10 बार पढ़ाने को तैयार हूं.
लेकिन पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो ऐसा ना हो कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, वो चीज मैं नहीं करता। कोई रीजन हुआ ना, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। हाँ, तो डिग्री इसलिए इसलिए कि अगर आप यहां पर देखोगे ये एक्स स्क्वायर है, राइट? तो एक्स स्क्वायर जब वो रहता है तो इसका डिग्री हो गया 2, करेक्ट? और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज मैच करती हैं, मतलब इसको दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। दो ऐसे वैल्यूज देखिए यहां पे, देखिए एक तो 3 था और दूसरा -1 है, दोनों केस में ही ये 0 हो जा रहे हैं, देख रहे हैं आप? यस सर। तो इसके कारण क्या हुआ कि 3 और -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसलिए ये किसी बुक में नहीं लिखा, ये किसी बुक में नहीं लिखा कि नंबर ऑफ डिग्री विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। ये मैं कंक्लूड करके बता रहा हूं आपको कि जितना डिग्री होगा, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने जीरोस आने चाहिए। अभी जैसे बाई क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस हमको लेने चाहिए, राइट? उसने बोल दिया फाइंड ऑल जीरोस, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बुक्स में, राइट? यस सर। अमीशी, बात समझ रहे मैंने ये क्यों बताया है? क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि बोल क्या देगा कि वन ऑफ द जीरोस इज दिस एक्सप्रेशन, कुछ दे दिया, बोलेगा फाइंड अदर जीरोस। जब आपको पता ही नहीं है कि टोटल कितने जीरोस उसमें होते हैं, कितने जीरोस चाहिए, तो आप कितने जीरोस निकालोगे? नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे आपको बता दिया कि दैट रहे कि जितना भी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी आने चाहिए। ये कंक्लूजन है, ये किसी बुक में नहीं लिखा। इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. ओके सोनल, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके फाइन फाइन। ओके, तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया ये पार्ट नंबर ऑफ डिग्री वाला? Yes, sir. नोट कर लीजिए, मुझे रब करना है। सोनल नोट हो गया? हो गया। हो गया, ओके। चलिए तो मैं रब कर देता हूं। ओके, गिव मी अ सेकंड। अमीशी रब कर दे। Yes, sir. ओके, ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Give me a moment. Okay, I'm going to tell you something more now. Now note कीजिए to new topic. हमारा जो टॉपिक है अब है zeros and coefficient of quadratic polynomial. Okay. Give me a second. Relation between, or you can say relationship of zeros and coefficient of quadratic expression. Is that clear, the statement? यस सर। ओके फाइन। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बता देता हूं। मैं यहां लिखने जा रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c. This is what? This is our general form of quadratic expression. Is this clear? Okay, is this clear? Amish? Yes, Okay. sir. अमीशी आप बताइए कि इसमें
ये कौन सा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री कितना होगा? व्हाट इज द Sir, dig 2. 2? डिग्री 2 है तो हाउ मेनी zeros we will get it? 2. We will get 2 zeros, right? Yes, So sir. hence in quadratic expression, we consider 2 zeros. How many zeros? 2 zeros that are, let alpha and beta are zeros of expression. Is this clear? हमने क्या माना कि हमने मान लिया कि अल्फा और बी, आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जनरली सब लोग यही मानते हैं कि अल्फा बीटा ही जनरली लेते हैं. अगर 2 जीरोस लेने हैं तो अल्फा बीटा, 3 जीरोस लेने रहेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें? अल्फा बीटा गामा. एंड ओके, एंड अमीश अगर 4 जीरोस लेने रहेंगे तो क्या लेंगे हम? Alpha, beta, gamma, and delta. गुड, परफेक्ट, ओके. नाउ अब देखिए, ध्यान दीजिए मैं यहाँ क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. यहाँ बहुत ही अर्जेंट चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे सभी लोग फोकस करेंगे. यहाँ पर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, अब खुद से लिखा कि जनरल फॉर्म ये होता है, राइट? अब मान लेते हैं कि अगर कोई हमको अल्फा बीटा दे देता है, अल्फा बीटा की कोई वैल्यू दे देता है, तो हम एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? तो अल्फा बीटा जब गिवन हो तो जनरल इक्वेशन बन जाएगा, इससे जनरल इक्वेशन बनाएंगे हम x minus alpha and x minus beta. This is the way to write down the general expression. Is that clear? अगर 3 जीरोस होते तो अल्फा बीटा गामा होता, तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखते? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. अगर 4 जीरोस होते, 4 जीरोस होते हमारे पास, तो हम लिखते उसमें x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा. मैं यहां लिख भी देता हूं जिससे आपको क्लियर हो. सो x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा. ये कब की बात होती? जब हमारे पास 4 जीरोस होते. लेकिन अभी क्या है? अभी हमारे पास 2 ही हैं, तो हम सिर्फ 2 ही का यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? अमीशी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. जब हमारे पास जीरोस गिवन रहेगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. सो व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा टाइम्स बीटा. कैन आई राइट दिस? सो फर्दर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर. यहां पर देखिए x कॉमन आ गया. क्या आ गया? x कॉमन. तो हम कॉमन निकाल लेंगे x. मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो बच क्या जाएगा हमारे पास? माइनस अल्फा टाइम्स बीटा. हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस अल्फा टाइम्स बीटा, एंड देन वी कैन राइट इट डाउन हियर अल्फा बीटा. किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर. तो आप एक काम कीजिए, 2 तरीका बताया मैंने लिखने का. एक तो जनरल फॉर्म ऐसे होता है जिसमें ऑलरेडी इक्वेशन हमको दिया रहेगा. दूसरा ये है कि हमको जीरोस मालूम है, जीरोस दे दिया और उससे कहता है जी कि इक्वेशन लिखो, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे करके. ये एक्सप्रेशन लिखना है और यहां से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमको मल्टीप्लीकेशन सभी को मालूम है कैसे होता है, राइट? मल्टीप्लीकेशन पता है ना सभी को? हाँ सर. अमीशी, यू नो दैट, राइट? Yes, sir. ओके. सो प्लीज आप एक काम करो, ये वाला पोर्शन जल्दी से नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके. जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है यहाँ पे, जल्दी से ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए आप सभी लोग. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है अब.
हो गया। Done? Okay. Okay, perfect. Amishi done? Yes, sir. Okay. Yes. अच्छा, अब आपने क्या करना है जी कि आपने ये भी लिख लिया है, ये भी लिख लिया है। मैंने दोनों ही जनरल इक्वेशन बोला है, राइट? तो हम एक काम करेंगे, आप सभी लोग ये मेरा लास्ट वाला एक्सप्रेशन देख रहे हो जो यहां पर निकल के आया है, हम इसको इसके साथ इक्वेट करा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, फिर हम देखते हैं कैसे इक्वेट कराते हैं। मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? अच्छा, यहां मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे में यहां पर कुछ है क्या, कोई कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे? 1 है, तो यहां भी मुझे 1 बनाना पड़ेगा इक्वेट कराने के लिए। इन दोनों को इक्वेट कराने के लिए ऊपर भी मुझे 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं काम करूंगा, मैं इसको a से डिवाइड, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं a से डिवाइड दे देता हूं। तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा जी b अपॉन a टाइम्स x, और ये बन जाएगा जी c अपॉन a। अमीशी कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? Sir. ओके, अब हम एक काम करेंगे, हम इस दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कराएंगे, ठीक है? तो इक्वेट जब कराते हैं तो सॉरी, इक्वेट जब कराते हैं तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो कुछ इक्वल 1 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं हम, राइट? 1 इक्वल्स टू 1। दूसरा ध्यान दीजिए कि हमारे पास यहां पर क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स। तो एक्स वाला एक्स के साथ इक्वेट कराएंगे, तो यहां पर ये क्या है, प्लस बी बाई ए। तो हम लिख सकते हैं जी माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। और तीसरा अगर हम देखें तो अल्फा बीटा जो है इसके इक्विवेलेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम जी यहां लिख देते हैं अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, राइट? तो 1 इज इक्वल्स टू 1, तो इसको तो कैंसिल कर दे, कोई मतलब नहीं रहा, राइट? तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरी चीज, जब हम इस पर आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको लिख दें अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा कितना, माइनस बी बाई ए। कैन आई से दैट, सोनल? Yes, sir. Okay. What is alpha and beta? What is alpha plus beta? This is what? This is coming to equals to minus b by a. So हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। क्या हो गया, सम ऑफ zeros. अच्छा, उसके बाद लिख देंगे नेगेटिव, और बी मतलब क्या हुआ, बी मतलब देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए कहाँ है, ए यहाँ पर है, इफ यू सी हियर। सो ए इज व्हाट, ए इज द अमीशी, ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ Of x square. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। ओके, तो एक तो जी ये सम ऑफ जीरोस आपको मालूम हो गया कि किसको बोलेंगे हम, राइट? तो सम ऑफ जीरोस में हमको समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो अल्फा टाइम्स बीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा टाइम्स बीटा मतलब हो गया जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros, and that will be equals to c means constant divided by coefficient of x square. Is this clear with you all? Is this clear with you all? Yes, sir. अमीशी आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो एक काम करना है, अभी मैं आपको एक चीज लिख कर दे रहा हूं, ठीक है? जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं वापस से लिख दे रहा हूं यहां पर।
ax square plus bx plus c. This is what? This is the expression, right? So if any and let alpha and beta are zeros of expression, so sum of zeros आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और कोई आपसे बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अब देखिए हमने ये रिलेशनशिप निकाला, ये अल्फा बीटा क्या है? जीरोस हैं, और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशंस, राइट? तो हमने ये रिलेशनशिप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग जल्दी से ये वाला पार्ट नोट कीजिए, बॉक्सेस, ओके? और फिर नेक्स्ट पेज वाला भी नोट करना है आपको। सो प्लीज डू इट फास्ट, यू हैव 2 minutes। कैन यू डू? Done. Okay. Done. Done. Okay, perfect. Okay, ठीक है। ये वाला पेज, ये वाला, ये नोट हो गया? Sir. अच्छा, Yes, sir. ठीक है। अब मैं एक चीज आप लोग को दिखा देता हूं समरी में, जस्ट सेकेंड। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, ओके, आप लोग समरी में जरा इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन द समरी पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये जब एक्सप्रेशन देता है तो हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास अगर जीरोस गिवन है तो हम एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, राइट? सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द समरी। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है पूछना, मुझसे अभी पूछ सकते हैं। नीतीश, आपको कुछ पूछना है? नीतीश, आपको कुछ पूछना है? ओके, सोनल, आपको कुछ पूछना है? Yes, sir. ओके, अमीशी? Sir. नहीं, No, ओके, sir. ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, आप सभी लोग आई थिंक मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानते हैं, राइट? ओके, Yes, sir. परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट। सो मैं रब कर दे रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पर से। गिव मी अ मोमेंट। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज। सो आई एम गोइंग टू टेक वन प्रॉब्लम and then I will tell you how to do this part. So problem अभी आ रहा है हमारे पास। Okay, can you see the problem? Can you see the problem? Yes, sir. अमीशी, प्रॉब्लम देख सकते हैं आप? Yes, sir. ओके, इसमें क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोस पूछ रहा है, राइट?
तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया क्या था, जीरो कब होता है, जब एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाए, राइट। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। सो अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। So we can write it down here, 2x square Yes. plus 5x minus 12 is equals to 0. तो कौन कौन मुझे बताएगा सॉल्व करके कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, अमीशी, सोनल, नीतीश, आप लोग ट्राई करके बताइए मुझे। Yes. What is the value of the x for this expression? Sir, x is equal to 3 upon 2 Good. And x is equal to minus 4. okay, Amishi, what is your answer? Yes, sir. Huh? Just a minute. Just a minute. I'm solving. Okay, no problem. Take your time. Take your time. Okay, done. Nitish, done. नीतीश, यस सर। ओके, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप अनम्यूट नहीं करते खुद को, मोबाइल में थोड़ा अनम्यूट कर लिया कीजिए कभी कभी, ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं इधर से कर दिया करूंगा, नो इश्यू। तो आपका नीतीश आंसर कितना आया? नीतीश आपका आंसर कितना आया? आपकी आवाज नहीं आ रही। नीतीश आपका आंसर कितना आया? -4 सर। और दूसरा आंसर? 3/2 सर। ओके, अमीशी, व्हाट अबाउट यू? ओके, Not able to. नॉट एबल टू, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी, कैसे इसको करते हैं देखते हैं, ठीक है। ओके, ये एक्सप्रेशन जो था ये क्वाड्रेटिक है, राइट। तो यहां पर ये क्या है, कोफिशिएंट क्या है इसका? 2, और यहां पर कोफिशिएंट क्या है अमीशी? -12. -12। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको लिखेंगे इधर रफ, क्या लिखेंगे जी? रफ। रफ में हमने 2, ये वाला 2, ध्यान दीजिए, ये वाला 2 और ये वाला पूरा उठा लिया हमने, तो कितना हो गया जी हमारे पास? हमारे पास ये हो गया -24, राइट। आपको कोई दिक्कत यहाँ पे अमित जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सोनल आप म्यूट कर लीजिए अपना। अमीशी, हेलो। No, sir. ओके, अब Yes, sir. यस, अब देखिए क्या करना है इसमें। 24 आया तो हम क्या करेंगे, माइनस फिलहाल भूल जाएंगे और 24 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम देखिए, हम शुरू करते हैं, 12, यहां आ गया 6 और यहां आ गया 3, राइट। ओके, सो यहां पर ये हो गया 3। अब हमारे पास टोटल 4 आ गए, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं। तो देखिए मैं बनाने जा रहा हूं, तो इससे हम बना सकते हैं 8 और इससे हम बना सकते हैं 3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 and 3, सो 2 नंबर्स वी आर गेटिंग 8 and 3। सो अमीशी अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 11 आ जाएगा,
लेकिन अगर हम एक को Yes. प्लस और एक को नेगेटिव कर दें तो ये हमको +5 देगा, और इस हाँ दोनों जी। नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जो ये वाला है -24, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये मिडिल टर्म को Yes, sir. satisfy कर रहा है। तो ऑलवेज ध्यान ये देना है कि ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं आफ्टर डूइंग फैक्टराइजेशन कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको मिडिल वाला नंबर मिल जाए, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाए। इज इट क्लियर विद यू? Yes. ओके, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। -12 इक्वल्स टू 0। अब अमीशी ये बताइए पहले में क्या मिल रहा है कॉमन? Yes, sir. What is the 2x. common? 2x is the common. So I will take it to 2x. What is left for the first term? X plus 8. X. No, 2 already you have taken. So it will be 4 left. Right? Sorry, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now minus, what I can take common here? 3. I can take common only 3. So I will write down 3 and I will write down here x. क्या बचेगा अंदर में? So 4. Plus 4. Plus 4. प्लस 4, Plus- राइट। अब ध्यान ये देना है जी कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये अगर जरा भी इधर उधर हुआ, मतलब कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे x + 4 है तो यहाँ भी x + 4 ही होना चाहिए, x - 4 नहीं चलेगा, राइट? तो जो नंबर यहाँ है, जो वैल्यूज यहाँ है, वही वैल्यूज यहाँ भी होनी चाहिए। अगर नहीं है मीन्स आप कुछ गलती कर रहे हो। इज इट क्लियर विद यू? सो नाउ जो ब्रैकेट है उसको हम यहाँ लिख देंगे, और जो बच गया उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। सो इट गिव्स मी हियर लाइक दिस। नाउ 1 by 1 इस इक्वेशन को आप इक्वेट कराओ और फिर इस इक्वेशन को इक्वेट कराओ। तो आप देखो मैं ओके, सो आई विल राइट डाउन हियर, गिव मी अ सेकंड। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर, x + 4 = 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x = -4, राइट? अच्छा, दूसरा ये हो जाएगा 2x - 3 = 0. So x will become how much? 3/2. So are we getting two values now? Amishi, Yes, is sir. this clear? Yes. Please note कर लीजिए फटाफट। जी। So noted. Noted? Okay. Fine. Okay. Is it done? Okay. ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया हमें, राइट? अब हमको जीरोस मिल गए हैं, तो ये जीरोस और ये जीरोस, राइट? तो अब हमारे पास, हम रब कर दें इसको जरा, कैन वी रब इट? Yes, sir. Okay, so we are getting zeros now, like here alpha we will get it as -4 and beta we will consider as 3/2. Is that clear? अब करना कुछ नहीं है, जीरोस मिल गया हमको। क्या मिल गया? जीरोस मिल गया, राइट? अब हमको रिलेशनशिप निकाल देना है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। हमको मालूम है कि सम ऑफ zeros will be what? Will be -b/a. Am I right? What is the value of b? If I see here, if I write down the equation like this, what is the value of b? Value of b I am getting 5. 5. And what is the value of a I am getting here? 2. So I will write down here, a is equals to 2, b is equals to 5, and what is the value of c, Amishi? -12. 12. तो हम देखिए, हम सिंपली एक चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा को जरा ऐड कर दीजिए, तो -4 + 3/2 कितना आता है, चेक कीजिए जरा।
ये आ जाएगा, कितना आएगा? ऐड करने के बाद कितना आएगा सोनल? -5/2. यस, -5/2 आ जाएगा, राइट। सो यहां देखिए ये -5/2 आ गया। अब जरा जी आप लोग b की वैल्यू क्या है? तो 5, a की वैल्यू क्या है? तो 2। आर दे कमिंग सेम नाउ? So they are coming same. That means this is okay. Next, product wala. So we know very well alpha times beta is how much? C/A. तो जरा आप प्रोडक्ट करके देखिए, -4 times 3/2. तो ये कितना आ गया जी हमको? ये हमको मिल गया -6. अब जरा इसको C/A की वैल्यू पुटअप करके देखिए, तो C जो है वो -12 है, A जो है 2 है. Is it giving me same value now? Can you see that? So these are all we have verified. So we will write down yes, verified, and we will end it. Is that clear? Amishi, is that clear? Yes, sir. Okay. Sonal, आपको? Okay, I think he has gone. Okay, no, he come back. Okay, fine. So Amishi, Sonal आपको clear हुआ या नहीं? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो अमीशी आपको कुछ पूछना है? कुछ समझ No. नहीं आया तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, कल हम इस क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। क्वेश्चन क्योंकि आज थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा था, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। तो कल जो है हमारा कंप्लीटली प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा, मतलब कल मीन्स नेक्स्ट सेशन में हमारा, ठीक है? या सॉरी। तो सोनल, नीतीश आपको कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, No, ओके फाइन। सब कुछ क्लियर है, समझ में आया या नहीं? आया सर। ओके ठीक है। अमीशी आपको? मजा आया। ओके ठीक है, ओके फाइन। सो हम लोग कल मिलेंगे फॉर द सेशन ऑफ फिजिक्स। ओके ठीक है, यस ओके Yes, sir. ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, Good night. Good night. या गुड नाइट। Thank you. Stay connected.